Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we are going to discuss about the startup and we will see what are the income tax benefits available to the startup if they are established in India. We will also talk about the Startup India scheme and we will see what are the benefits given by the government to help startup grow in India. So let's start. So Startup India scheme. So what is an eligible startup? So only an eligible startup will get the benefits which is provided under this scheme. So an eligible startup can either be a private company, it can be a partnership firm, or it can be a limited liability partnership, LLP. So only three forms are allowed. Second point, an eligible startup is a startup which has not completed 10 years from the date of incorporation. तो 10 साल नहीं हो गए हैं. So अगर आपको बने हुए 10 साल हो गए हैं तो आप eligible startup नहीं हो सकते. Third point is the turnover does not exceed 100 crore. So अगर आपका turnover 100 करोड़ को क्रॉस कर चुका है तो आप eligible startup नहीं बन सकते. Next, एक स्टार्टअप जो बन रहा है that should be a newly established startup. So it should not formed by reconstruction or splitting up existing business. So it should be a new startup. And the last but not the least, an entity is working towards innovation. So इस eligible startup वही startup है जो innovation के लिए काम करे या फिर development और improvement के लिए काम करे या फिर if it is a scalable business model, अगर scalable business model है then it should have a potential to generate employment or to create wealth for India. सो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब आप एक एलिजिबल स्टार्टअप होंगे और आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे. स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के जनरल बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन. सो देयर आर वेरियस एनवायरमेंटल और पोल्यूशन लॉज which needs rigorous compliances. So under this scheme the compliances has been made very easy through a simple form. Second is tax benefit. So there are lot of tax benefit, 80 IAC, 5672B. There is capital gain benefits which we will see in the later part of this video. Easy winding up. The winding up process of the startup has been made very easy. So there is easy exit opportunity available. Easier public procurement. Now the new startups can participate in the government procurements and the compliance has been made easy for them. Patent application. Now they can get their patent registered through an easy process. Numerous labs in various innovation and incubators has been established to facilitate the startup to grow their business in India, and lot of grants will be provided by the government for the development or for the progress of that startup. Now let's talk about the tax benefit, which is the main part of this video. What are the tax benefit available to an eligible startup? So 80 IAC. So first is 80 IAC tax benefit. Now under section 80 IAC it is said that if you are an eligible startup and if you are an eligible startup doing eligible business, then you can get 100% profit deduction for 3 consecutive years out of 10 years. मतलब कि एक स्टार्टअप जो कि एलिजिबल स्टार्टअप है और जो एलिजिबल बिजनेस करता है वो अपने पहले 10 साल में किसी भी 3 साल के प्रॉफिट का पूरा डिडक्शन ले सकता है 80 IAC में. 3 साल तक कोई प्रॉफिट पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा. वो 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार ईयर होने जरूरी है. एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है? एलिजिबल बिजनेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है it should work towards innovation, development or improvement of product, and if it is a scalable business so it should show that it has high potential for generation of employment and wealth creation. So I hope this is clear. So eligible business is clear. Now what do you mean by eligible startup? Eligible startup का मतलब होता है वो startup जो 1 अप्रैल 2016 से के अंदर और 31 मार्च 2023 के पहले बना हो. So इस डेट के दौरान आप established है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस नहीं किया गया है और आपने इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा कि हम 80 IAC से कंप्लाइंट है. तो अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं एंड फ्यू एडिशनल कंप्लायंस करते हैं तो आपको 3 साल का प्रॉफिट पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा. कौन से एडिशनल कंप्लायंसेस है? सिमिलर है कि आप स्प्लिट अप होके या रिकंस्ट्रक्शन होके नहीं बनाए. यू आर अ न्यू एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप. एंड द लास्ट वन इज not formed by transfer of machinery or plant previously used. मतलब आपने अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी जो कि ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया है, सेकेंड हैंड मशीनरी यूज नहीं की है. तो अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी यूज करते हैं तो आपको एलिजिबल स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है. क्या
कि अगर कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया की बाहर यूज हुई है, इंडिया में यूज नहीं हुई है, और उसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया गया है, तो ऐसे इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी को हम अलाउ कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप सेकेंड हैंड मशीनरी यूज करते हैं और उसका टोटल वैल्यू आपके टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% या उससे कम है, मतलब नया टोटल प्लांट एंड मशीनरी ले लो एंड सेकेंड हैंड ले लो, सेकेंड हैंड का वैल्यू अगर सिर्फ 20% या उससे कम है आपके टोटल प्लांट एंड मशीनरी का, तो भी हम अलाउ कर देंगे आपको सेकेंड हैंड यूज करने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। सो अगर आप 80 IAC का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इंटर ट्रांसफर करते हैं गुड्स, मतलब अपने एलिजिबल स्टार्टअप और अपने अदर बिजनेस के साथ में, एसएससी का 2 बिजनेस है, एक स्टार्टअप एक अदर बिजनेस, उसमें अगर ट्रांजैक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। सो ये हो गया 80 IAC का बेनिफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर बेनिफिट जो एक स्टार्टअप को मिलेगा, विच इज 5627B। ये क्या है? सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट कि व्हाट इज दिस 5627B। एज पर दिस सेक्शन कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक सब्सटेंशियली इन्वॉल्व नहीं है, सो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हैं, अगर शेयर इशू करता है, ठीक है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करता है, देन इट शुड इशू इट एट फेयर मार्केट वैल्यू। ये लॉ है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर देता है तो एक्सेस अमाउंट पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्या? जितना कंसिडरेशन मिला है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, उससे ऊपर का जो भी बैलेंस कंसिडरेशन है उस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना होगा। एक एलिजिबल स्टार्टअप डूइंग एलिजिबल बिजनेस को इस सेक्शन से एग्जेम्पशन मिल गया है। एग्जेम्प्टेड मतलब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे भी अगर शेयर इशू करते हैं तो भी आप पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू मेनी कंडीशंस। 3-4 कंडीशंस है, उसको सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन, यू शुड बी एन एलिजिबल स्टार्टअप। आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है DPIIT, इससे पहले तो एक एलिजिबल स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेना होगा। सेकेंड, शेयर इशू करने के बाद में आपका पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शेयर इशू करने के बाद में 25 करोड़ तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप 7 साल तक कुछ स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन सम एसेट फॉर 7 years। ओके, सो दीज 3 कंडीशन इज क्लियर। DPIIT से सर्टिफिकेट, 25 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होना चाहिए, और 7 साल तक आप कोई स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ दैट 25 करोड़ लिमिट्स में कुछ बेनिफिट है कि अगर आप 3 कैटेगरी को शेयर इशू करते हैं तो वो 25 करोड़ में काउंट नहीं होगा। क्या क्या कैटेगरी है? नॉन रेसिडेंट। तो अगर आप एक नॉन रेसिडेंट को शेयर इशू करते हैं तो वो 25 में काउंट नहीं होगा। अगर आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और वेंचर कैपिटल फंड को शेयर इशू करते हैं तो वो 25 में काउंट नहीं होगा। और अगर आप कोई स्पेसिफाइड कंपनी को शेयर इशू करते हैं तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है वो लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्क पिछले साल 100 करोड़ से ज्यादा हो या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो। तो ऐसे स्पेसिफाइड कंपनी को भी शेयर इशू करेंगे तो वो 25 करोड़ में काउंट नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन से ऐसे एसेट है जो 7 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी, नंबर 1, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट बीइंग अ रेसिडेंशियल। तो अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा इस सेक्शन का। रेसिडेंशियल हाउस अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है, अगर आपका बिजनेस ही रियल एस्टेट का है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। आप लैंड एंड बिल्डिंग नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल, मतलब एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हालांकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है रियल एस्टेट का तो अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल और बोथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। यू कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपका बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस का है तो अलग बात है, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव लोन्स एंड एडवांसेस। यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ एनी अदर एंटिटी। किसी एंटिटी के कैपिटल में पैसा नहीं डाल सकते। You cannot invest in shares and securities. You cannot invest in any vehicle जिसका कॉस्ट 10 लाख के ऊपर है। जो मोटर व्हीकल, यॉट, एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो अलाउड है।
ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बलियन, वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्लियर है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम फेस वैल्यू के ऊपर भी शेयर इशू कर सकते हैं और अदर सोर्सेज में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेट्स मूव टू द थर्ड बेनिफिट अवेलेबल टू एन एलिजिबल स्टार्टअप, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। अगर एक एलिजिबल स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कोई भी एसेट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देता है किसमें, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है उसके पैसे को कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, स्पेसिफाइड एसेट खरीद लेता है विद इन 6 मंथ, ट्रांसफर करने के 6 महीने के अंदर, तो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा एग्जेम्पशन है, और अगर लिमिटेड कुछ पैसा, कुछ कैपिटल गेन सेव कर लिया है, नहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब वो स्पेसिफाइड एसेट क्या है, किसमें इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट नोटिफाइड फंड्स। गवर्नमेंट कुछ फंड्स नोटिफाई करेगा, उस फंड के अंदर का, उस फंड्स का यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो 6 महीने के अंदर, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो और 3 साल तक आपको वो यूनिट्स बेच नहीं सकते। सो ब्लॉकिंग पीरियड है कि 3 साल तक वो यूनिट्स आपको अपने पास रखना पड़ेगा। So I hope this is clear. So these are the tax benefits which are available to an eligible startup in India, because this is the time of unicorns. Every government, every country is working towards development of their startup, because this is the future. It creates lot of employment and it creates and it generates wealth for the country. So I hope this is clear. If we have any doubt, we can surely discuss. Thank you.